My name is Neha Mittal. I am working as an assistant professor at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. In this lecture, I am going to discuss about the anti-malarial drugs part 1, which is a topic under unit 2 of medicinal chemistry 3rd BP 601T. In this lecture, we will discuss what is malaria, how does it happen, what are the causes and how it can be treated. So, basically in this lecture we will discuss the etiology of malaria. In this slide we will discuss introduction, life cycle of malaria, what are the signs and symptoms of malaria, pathophysiology of malaria, and in the last, management of malaria. Malaria is a mosquito borne disease which is caused by the what is the cause? Cause is the Plasmodium, but it spreads through the bite of an infected female Anopheles mosquito. It is very important to note that it is a female Anopheles and it is infected already with the Plasmodium. So, malaria is a mosquito borne disease which is caused by the Plasmodium and it is transferred by the bite of infected female Anopheles mosquito. If we talk about the malaria term, it is made up of two parts, mala and area. Mala means bad and area means air. It is obtained from the Indian italic word, that is the bad air. If we talk about the malaria, it is caused by the members of protozoan genus, that is Plasmodium, which basically disturb the liver and red blood cells. There are the 4 species of Plasmodium: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale and Plasmodium malariae. So, हम देखते हैं कि जो मोस्टली जनरली सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है वो है Plasmodium falciparum species. Falciparum is the most common species recognized. If we see the data, then according to WHO, around 350 to 500 million people worldwide affect every year. इतना बड़ा काउंट है जो हर साल पूरे देश भर में देखा जाए, सो 350 से 500 मिलियन लोग अफेक्ट होते हैं मलेरिया से एवरी ईयर. अगर हम देखें इंडिया में, सो अकॉर्डिंग टू द डेटा वी सी दैट देयर आर अराउंड 2 मिलियन केसेस which are detected and around 1000 deaths due to the malaria. If we talk about the region wise, then we see that the tropical countries are at high risk of malaria. As I discussed earlier that only female mosquitoes are responsible for the transferring or the infection of malaria, because the male mosquito do not feed blood. Male mosquito are dependent on plant nectars for their food. Only female mosquitoes feed on blood, hence they are the carrier of malaria. In this slide, we will discuss about the life cycle of Plasmodium. इसको समझने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि there is a mosquito, it is previously infected. It is previously infected. ये जब ह्यूमन बॉडी के ऊपर जाएगी फॉर द फीड पर्पस,
So through the saliva, it will spread the sporozoites to the human body. It will spread the sporozoites. Sporozoites कहाँ present है? जो मॉस्किटो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसकी सलाइवा में स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट होते हैं. जब वो ह्यूमन बॉडी पे जाके कट करती है, ह्यूमन बॉडी पे फीड करती है, सो थ्रू द सलाइवा इट इनोकुलेट द स्पोरोजॉइट्स इन द ह्यूमन बॉडी विच गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू द लीवर. जैसे मैंने बताया, इट प्राइमरी अफेक्ट द टू पार्ट्स, वन इज लीवर एंड द सेकेंड इज रेड ब्लड सेल्स. सो सबसे पहले ये लीवर के अंदर जाएगा. लीवर के अंदर जाने के बाद द स्पोरोजॉइट्स पासेस स्पीडली इनटू द लीवर. लीवर के अंदर पहुंच चुके हैं. लीवर के अंदर जाने के बाद ये लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और वहां पर जाकर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. वहां पर जाकर स्पोरोजॉइट्स का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा. थ्रू द एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन in the next 7 to 10 days, in the next 7 to 10 days लग जाते हैं जब तक आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएगा और आपके लीवर के अंदर स्पोरोजॉइट्स का फास्टिंग से, बहुत फास्ट स्पीड से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. आप देखेंगे कि ये जो जब यहाँ पे इनकी बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, देन दे प्रोड्यूस द मीरोजॉइट्स. दे प्रोड्यूस द मीरोजॉइट्स और फिर ये मीरोजॉइट्स अफेक्ट करते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स. यानी कि इसमें हमें क्या समझ में आया? हमने ये देखा कि जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड मॉस्किटो थी, जिसके सलाइवा के अंदर स्पोरोजॉइट्स प्रेजेंट थे, थ्रू द फूड, थ्रू द ब्लड मील ये स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर किए. ये एंटर करने के बाद इट पासेस टू द लीवर. लीवर के अंदर जाके 7 से 10 डेज तक दे स्टार्टेड मल्टीप्लाइंग. मल्टीप्लाई होने के दौरान आपको कोई सिम्टम दिखाई नहीं देगा. उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इनका रप्चर हो जाते हैं. दे गेट रप्चर्ड एंड दे फॉर्म्स द मीरोजॉइट्स. नाउ दे मीरोजॉइट्स स्टार्टेड इन्फेक्टिंग रेड ब्लड सेल्स. लीवर को तो अफेक्ट कर चुके हैं, वहाँ से मेच्योर हो गए, वहाँ से मीरोजॉइट्स के फॉर्म में बाहर निकले हैं. Now this merozoites through the asexual cycle produce, अब देखेंगे after the initial replication in the liver, now the parasites is undergoing into the erythrocytes. erythrocytes के अंदर उसने एंट्री कर ली है. erythrocytes के अंदर क्या करेंगे? Now they started infecting red blood cells. लीवर को अफेक्ट करने के बाद now they started infecting red blood cells. रेड ब्लड सेल्स में एक स्टेज होती है रिंग स्ट्रक्चर, दैट इज द ट्रोपनोजॉइट. जो इरेथ्रोसाइट्स में जो ट्रोपनोजॉइट्स बनाएंगे, जो मीरोजॉइट्स हैं वो ट्रोपनोजॉइट्स बनाएंगे. इसके बाद वो साइजॉन्स बनाएंगे और ये साइकिल, ये आगे चलेंगे, फिर रप्चर होंगे, फिर बहुत सारे मीरोजॉइट्स बनाएंगे. ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इन्वेड ना हो जाएं, वो बर्स्ट ना हो जाएं. जैसे ही रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट होती हैं, फीवर आता है, चिल्स, ठंड लगनी शुरू हो जाती है, सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं. तो आप समझ लीजिए कि जो प्लाज्मोडियम है वो लीवर से होके ब्लड में जाकर उसने रेड ब्लड सेल्स को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया है. ये जो पूरा साइकिल चल रहा है, इट इज द एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन. इस पूरे प्रोसेस में कुछ जो इरेथ्रोसाइटिक साइजोन्स हैं, ये सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन में पार्ट करते हैं एंड दे फॉर्म्स द गेमेटोसाइट्स. नाउ दिस साइकिल इज टेकिंग प्लेस अगेन एंड अगेन. ये साइकिल कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रही है. मोर एंड मोर नंबर ऑफ मीरोजॉइट्स बन रहे हैं और वो जो रेड ब्लड सेल्स है उसको बर्स्ट कर रहे हैं. इन द सेम टाइम कुछ जो साइजॉन्स हैं, दे पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन एंड दे फॉर्म्स द गेमेटोसाइट्स. नाउ इन द
in the blood of the human body, there are the gametocytes which is flowing in the blood. Now what happened? When a mosquito will bite to this person, so the mosquito will get infected through this gametocytes. एक मॉस्किटो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, उसने जब ह्यूमन बॉडी के ऊपर कट किया या ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब उसने फीड किया, तो उसने अपने सलाइवा से स्पोरोजॉइट्स को बॉडी के अंदर स्प्रेड कराया. इसी तरीके से जब गैमेटोसाइट्स बनते हैं और कोई दूसरा मॉस्किटो बाइट करता है, सो ये गैमेटोसाइट्स मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं जो बनाते हैं गैमेट्स, then microgametes, then zygote. In the last ookinete and last में oocyst बनाते हैं. जब ये cyst burst हो जाते हैं, so they leads to the formation of sporozoites, जो further किसी person को बाइट करेगा तो वो स्पोरोजॉइट्स को फिर से ह्यूमन बॉडी के अंदर इनोकुलेट कराएगा. सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक मॉस्किटो कैसे इन्फेक्शन कर रहा है और हाउ द मॉस्किटो इज गेटिंग इन्फेक्टेड. अगर कोई मॉस्किटो पहले से इन्फेक्टेड नहीं है और वो मॉस्किटो किसी ऐसे पेशेंट को बाइट कर लेता है जिसके ब्लड में गैमेटोसाइट्स बन रहे हैं, सो वो मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. उस मॉस्किटो के अंदर माइक्रोगैमेट बनेंगे, फिर मैक्रोगैमेट्स बनेंगे, देन जाइगोट, देन ookinete and then oocyst. एंड oocyst जब बर्स्ट हो जाएंगे, इट विल फॉर्म द स्पोरोजॉइट्स, और ये स्पोरोजॉइट्स ड्यूरिंग द ब्लड फीड ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे, लीवर एंड देन आरबीसी को इस तरीके से अफेक्ट करेंगे. सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम. इसके अंदर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक बार डिस्कस कर लेते हैं. मीरोजॉइट्स स्टार्ट द रेड ब्लड सेल्स. The trophozoites mature into cytons which release the more number of merozoites. In the blood stream, the merozoites invade the red blood cells. Red blood cells को invade करना start कर देंगे and multiply. कब तक multiply करेंगे? जब तक आपकी जो सेल हैं वो burst नहीं हो जाएंगी. Then they attack more number of erythrocytes, जिसकी वजह से the cycle is repeated and they cause the fever and chills. ठंड लगना और बुखार लगना. Some of the infected blood cells leave the cycle for asexual multiplication. Instead of replicating, the merozoites in these cells develop the sexual form of the parasite known as gametocytes. जो मैंने आपको बताया, ये this gametocytes here. So through this, so here we will see that when a mosquito bites any infected humans, it ingests the gametocytes. जो gametocytes ह्यूमन बॉडी के ब्लड में बन रहे थे, वो मॉस्किटो जब बाइट करता है तो मॉस्किटो के ब्लड के अंदर चले जाते हैं. फिर ये जो मॉस्किटो होता है इसके अंदर बनते हैं oocyst, और फिर ये oocyst जब बर्स्ट होते हैं, दे मेक thousands of sporozoites, and then these sporozoites during the blood feed, they through the saliva of the mosquito, they enters into the human body. So this is all about the life cycle of plasmodia, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक मॉस्किटो के बाइट करने से the sporozoites get enter into the liver, and then it multiplies into the erythrocytes, and they invade the red blood cells causing the fever and chills. Then few blood red cells participate into the sexual replication, where they form the gametocytes. This gametocytes enter into the mosquito, and there is the formation of sporozoites. अगर हम एक ओवरव्यू लें मलेरिया साइकिल का, तो सिंपली हमने देखा दैट देयर इज अ infected mosquito bites person who has become infected. ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये जाएंगे आपके लीवर के अंदर, लीवर की सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे.
उसके बाद दे विल गो टू द इरेथ्रोसाइट्स एंड दे विल इन्वेड द रेड ब्लड सेल्स, दे विल अफेक्ट, दे विल डिग्रेड द RBC. After that, this from here through the another bite of mosquito, the gametocytes will enter into the mosquito, and through this way the cycle moves on. If we talk about the symptom of malaria, मलेरिया होने के बाद पेशेंट के अंदर हमें कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं. सो वी विल सी दैट इन द CNS उनका जो इफ़ेक्ट होता है, प्लाज्मोडियम का जो इफ़ेक्ट होता है, उसमें वी विल सी द हेडेक, सर दर्द होता है. सिस्टमिक, मैंने आपको बताया था कि सिस्टमिक जब ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं दे स्टार्टेड इन्वेडिंग, उनका इन्वेड होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से फीवर आता है. नेक्स्ट थर्ड मस्कुलर, अगर मस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पेशेंट है वो इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, उसको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन फील होता है एंड ही फील वेरी फटीग, बहुत थकावट लगती है शरीर में एंड बॉडी पेन फील होता है. बैक में अगर स्पाइन वाले पार्ट में देखें सो देयर इज़ अ पेन इन द बैक. इन द सेम वे स्वेटिंग होती है, ठंड लगती है, चिल्स होते हैं. रेस्पिरेटरी में अगर एक्शन देखेंगे तो देयर विल बी द ड्राई कफ. ड्राई कफ मीन्स उसके अंदर कोई म्यूकस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कफिंग पेशेंट को फील होगी. एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा. एंड इन स्टमक वी विल फील द नोजिया एंड वॉमिटिंग. सो कलेक्टिवली वी कैन से दैट हेडेक, फीवर, nausea, vomiting, back pain, body pain, fatigue, dry cough, chills and sweating are the general symptoms which a malaria patient feels. Then stages of malaria. मलेरिया के कितने स्टेज होते हैं? सो जनरली हमने यहाँ पे 3 स्टेज को हम पढ़ेंगे, कोल्ड, हॉट एंड स्वेटिंग. कोल्ड स्टेज वो स्टेज होती है जो पेशेंट है ही विल फील वेरी चिल, उसको बहुत ठंड लगेगी, 15 मिनट से 1 घंटे की होगी. वो कब होती है? जब आपकी रेड ब्लड सेल्स रप्चर हो रही हैं, जब पेशेंट के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब वो रप्चर हो रही हैं, सो उस टाइम पे चिल्स वाली स्टेज आती है. उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 15 to 1 hour. देन स्टेज 2, स्टेज 2 को हॉट स्टेज कहते हैं. हॉट स्टेज के अंदर फीवर आना स्टार्ट हो जाता है. वो फ्यू आवर्स से लेके सेवरल आवर्स तक रहता है, जब तक कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इन्वेड होती रहेंगी, ज़्यादा नंबर मेरोजॉइड्स बनते रहेंगे और रेड ब्लड सेल्स रप्चर होती रहेंगी. सो इट इज़ नॉन एज द हॉट स्टेज. फीवर में रीच हाई एंड लास्ट फॉर सेवरल आवर्स. इसमें तेज बुखार होगा, कई घंटे तक बुखार रह सकता है. क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका इन्वेड हो रहा है, उनका ब्लास्ट हो रहा है. एंड आपको कौन कौन से सिम्टम्स इस स्टेज में दिखाई देंगे? नोजिया, वॉमिटिंग और आपको बहुत ज़्यादा हेडेक फील होगा. स्टेज 3 है, दैट इज़ द स्वेटिंग स्टेज. इस स्टेज में जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा. सो इट इज़ नोन एज द स्वेटिंग स्टेज. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. अगर मलेरिया की बात करें सो मलेरिया का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि मलेरिया की सिवियरिटी कितनी है, कितना सीरियस मलेरिया है, इन्फेक्शन कितना सिवियर है, पेशेंट की एज कितनी है, क्या पेशेंट को पहले से कोई इम्यूनिटी या फिर कोई पहले से बैकग्राउंड हिस्ट्री है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा. हमें देखना पड़ेगा कि जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं उनका क्या ससेप्टिबिलिटी पैटर्न है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा. एंड कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स क्या है. सो दीज आर द फैक्टर्स जिसको हमको कंसिडर करना पड़ता है बिफोर गिविंग द ट्रीटमेंट फॉर एनी मलेरिया पेशेंट. एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं. जनरली हमने इनको 2 तरह के पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन एंड बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन.
यहाँ पे हम ब्रीफ में थोड़ा सा देखेंगे। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, या फिर हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन। सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि दे आर द क्विनोलिन्स। कुछ ऐसे एंटी मलेरियल ड्रग्स होते हैं जिनके अंदर क्विनोलिन्स रिंग प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर एग्जांपल है सिंकोना, 4 अमीनो क्विनोलिन्स एंड 8 अमीनो क्विनोलिन्स। दे आर द एंटी मलेरियल ड्रग्स विच कंटेन द quinoline nucleus in their structure. Second, we will see 2,4-diaminopyrimidines. इसके अंदर डाईअमीनोपायरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है, एग्जाम्पल है पायरीमेथामिन। थर्ड होगा नेप्थोक्विनोन, बिग्वेनाइड्स एंड डाईहाइड्रोट्राइजीन, सल्फोनामाइड एंड सेस्क्विटर्पीन लेक्टोन्स। These are the few categories of एंटी मलेरियल ड्रग्स जिसको हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू एंटी मलेरियल एक्टिविटी। कोई जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं वो अपना एक्शन कौन से पार्ट पर दिखा रही है या उसका जो काम करने का तरीका है, उसके बेसिस पे हमने उसको कैसे डिवाइड किया है। टिश्यू साइजोंटोसाइट्स, यानी कि जो साइजॉन्ट्स बन रहे थे ब्लड के अंदर, जो साइजॉन्ट्स बन रहे थे उनको ही अगर किल कर दें फॉर द कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस। टिश्यू साइजॉन्ट्स यानी कि टिश्यू में जो साइजॉन्ट्स बन रहे हैं उनको, साइड्स मीन्स किल कर देना, उनको ही हम किल कर दें फॉर प्रिवेंटिंग द रिलैप्स। ब्लड में जो फॉर्मेशन हो रही थी साइजॉन्ट्स की, अगर हम उनको किल कर दें। अगर हमारी बॉडी में, मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रेप्लिकेशन हो रहा है, few red blood cells, infected red blood cells undergoes into the sexual multiplication for the formation of gametocytes. ये वही gametocytes हैं जिसको फर्दर मॉस्किटो बाइट करते टाइम मॉस्किटो की बॉडी में चला जाता है। सो गैमेटोसाइट फॉर्मेशन, अगर हम गैमेटोसाइट्स को ही किल कर दें। लास्ट है स्पोरेंटोसाइट्स। स्पोरेंटोसाइट्स में जो स्पोरोसाइट्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं थ्रू द ब्लड फीड ऑफ इन्फेक्टेड मलेरिया, अगर उसको डायरेक्टली किल करना है सो हम स्पोरेंटोसाइट्स कंपाउंड्स को यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी पैथोफिजियोलॉजी है जो हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे एनीमिया। आप समझ ही रहे हैं, अगर हमारी रेड ब्लड सेल्स ही इन्वेड हो जाएंगी या रेड ब्लड सेल्स ही हमारी डिस्टर्ब हो रही हैं, सो डेफिनेटली द पेशेंट विल बी सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया। सेकेंड, रीनल फेलियर, फ्लूइड स्पेस एंड इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस, पल्मोनरी एडिमा, कोएगुलोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ब्लैक वाटर फीवर, लीवर भी अफेक्ट हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स भी अफेक्ट हो रही है, डेफिनेटली लीवर डिसफंक्शन, एसिडोसिस, आपके जो ब्लड है आपके जो स्टमक है उसके अंदर जो एसिडिटी है उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, एसिडोसिस। हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर का जो लेवल है आपके ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगा, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिया। एंड लास्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसफंक्शन। सो दीज आर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मलेरिया। प्रिवेंशन फ्रॉम मलेरिया, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि इट इज़ स्प्रेड थ्रू द इन्फेक्शन, थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो, सो हम क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस, क्या क्या ऐसी सावधानियां रख सकते हैं जिससे हम मलेरिया से बच सकते हैं। पहला कि अगर हम नेट्स का यूज़ करें, रिपेलेंट्स का यूज़ करें या फिर हम प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहने तो उससे हम मॉस्किटो बाइट को रोक सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बहुत सारे स्प्रे आते हैं मॉस्किटो किलिंग स्प्रेस, अगर हम उनका यूज़ करते हैं सो उससे हम मॉस्किटोज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड है एनवायरनमेंट सैनिटाइजेशन, ड्रेनेज मैनेजमेंट। अगर हम अपने एनवायरनमेंट में अपने चारों तरफ ऐसा इस तरह का माहौल बनाएं कि जो मॉस्किटो हैं वो पैदा ना हो या मॉस्किटो वहाँ पे सर्वाइव ना कर सके। एंड लास्ट है वियरिंग फुल स्लीव्स क्लोथ्स। सो दीज ऑल आर द प्रिवेंटिव मेजर्स जिसको हम यूज़ करके मॉस्किटो से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप you learn from this lecture. Thank you so much.